welcome to my channel. So today in this video, I will discuss about the UiPath IXP, how we can create project with IXP and how we can extract data from unstructured and very complex document with the help of IXP, how we can create a taxonomy and how we can write a prompt, create a field groups. These all of the things guys I'll discuss in this video. Please watch this video till the end. And if you have not subscribed my channel yet, please subscribe to my channel first. I have already created multiple videos on agentic automation and conversational agent. And guys, in the last video, I discussed about the autopilot integration with Microsoft Team. So you can watch this video also. And guys, if you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. So let's start. Okay, so guys, first of all, I have some PDF. So these all of the dummy data in this PDF. And from this PDF, I have to extract this vendor data and bill to and ship to address and invoice number, date, payment terms, due date, PO numbers and balance due and these item as well, right? So these all of the data I have to extract with the help of IXP. But mostly IXP unstructured document के लिए यूज होता है. तो guys मेरे पास अभी यहाँ पे इनवॉइस काफ़ी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है और मैं यहाँ पे AI सेंटर भी यूज कर सकता हूँ. बट मैं AI सेंटर यहाँ पे यूज क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज मैं लेबलिंग नहीं करना चाहता. अगर मेरे पास मल्टीपल इनवॉइसेज हैं सो मुझे उन पे लेबल करना पड़ेगा वन बाय वन एंड देन आई हैव टू ट्रेन माई मॉडल on my label data and on my invoice. So I don't want to do that. I don't want to invest my time on the labeling part, right? So मैं ये सारा डेटा IXP के थ्रू एक्सट्रैक्ट करूंगा. बट IXP के थ्रू एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. अगर आपके पास IXP का लाइसेंस नहीं है और IXP इनेबल्ड नहीं है आपके ऑर्केस्ट्रेटर पे, तो आप एडमिन सेक्शन में जाके वहाँ से IXP और सर्विसेज में जाके IXP इनेबल कर लेना एंड देन IXP पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आ जाना है. तो मैं यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा. And guys, here we have multiple templates. Like if we have multiple resumes where I have to extract data, and we can use this template. If we have certificate of analysis and death certificate and medical referrals, so we can use these template also. If I click on certificate of analysis template, so in this template, we have already defined field and field groups and then prompts as well. So you can refer these all of the data, these all of the template for understanding the prompt structure, right? Okay, so as of now I'll click on cancel button. I'll create a new project. I'll give the name invoice extraction, right? And here I'll click on create a blank project. So guys, IXP में prompt बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम लोग prompt नहीं लिखते हैं देन डेटा एक्सट्रैक्ट होगा या नहीं होगा. अगर प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो एक्सट्रैक्शन पे कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता. सो सही सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, राइट? अभी यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्ड पे जाऊंगा मैं एंड मेजर एंड पब्लिश, राइट? पब्लिश सेक्शन पे हमारे वो सारे फील्ड्स आते हैं जहाँ पे हमने कोई मॉडल पब्लिश किया हुआ है अपने ऑर्केस्ट्रेटर पे, राइट? एंड मेजर में हम अपने जो मॉडल हमने क्रिएट किया है उसका वर्जन चेक कर सकते हैं एंड उसका स्कोर हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेजर टैब में आके, ठीक है? एंड इन द बिल्ड टैब वी कैन अपलोड एनी डॉक्यूमेंट्स वेयर वी कैन लेबल आवर डेटा एंड वी कैन चेक like if prompt is working or not on this document. So we can upload any document here, right? And we can manage our taxonomy and validate predictions and we can select the model from here, right? So as of now in my orchestrator we have one model GPT 4.0. बट अगर आपके पास बिजनेस ऑर्केस्ट्रेटर है तो आपको वहाँ पे जेमिनी भी मिलेगा, राइट? बट अभी मेरे पास GPT 4o का ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे मैनेज टैक्सोनॉमी कर लेता हूँ, ठीक है? मैनेज टैक्सोनॉमी में आके सबसे पहले मैं टैक्सोनॉमी बनाऊंगा और टैक्सोनॉमी में मेरे को फील्ड्स डिफाइन करने हैं, कौन कौन से फील्ड्स मेरे को एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है? सो गाइस सबसे पहले हमें यहाँ फील्ड ग्रुप बनाना होता है. फील्ड ग्रुप काफ़ी सारे फील्ड्स का एक सेट होता है. जैसे मैं अपनी इनवॉइस में दिखाऊँ तो मेरे को यहाँ पे 2 टेबल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं. मतलब डेटा मेरे को टेबल फॉर्मेट में चाहिए बट 2 टेबल्स चाहिए. जैसे कि मेरे को एक टेबल चाहिए आइटम्स के लिए जहाँ से मैं सारे आइटम्स एक्सट्रैक्ट करूँगा एंड इन द सेकेंड टेबल आई वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट इनवॉइस नंबर, डेट, पेमेंट टर्म्स, ड्यू डेट, PO नंबर, बैलेंस ड्यू एंड वेंडर एड्रेस एंड बिल टू एंड शिप टू.
right? So here I'll create two field groups. So here I'll create first field group invoice journal information. एंड गाइस इंस्ट्रक्शन में हम लोग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये फील्ड ग्रुप कहाँ से कहाँ मिल सकता है डॉक्यूमेंट में। अगर आपने कोई पर्टिकुलर फील्ड ग्रुप दिया है तो देन आप यहाँ पे वो प्रॉम्प्ट लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको एम्प्टी रखता हूँ एंड आई क्लिक ऑन ऐड एंड नाउ आई विल क्रिएट अनदर फील्ड ग्रुप टू जस्ट एक्सट्रैक्ट द लाइन आइटम्स फ्रॉम द इनवॉइस, right? So I type here invoice item information and then like here I can write extract details from the tables, right? So इस तरीके से हम लोग यहाँ पे prompt ऐड कर सकते हैं और वन लाइन का prompt मैंने यहाँ पे दिया कि टेबल से मेरे को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, right? And then I'll click on add button and in the invoice journal information field group I'll create every fields. Right, first field I'll create invoice number. If you see in this invoice, so I have to extract invoice number, vendor name, then vendor address. So these all of the details I have to extract, right? So here I'll type only invoice number. And guys यहाँ पे आप देखना, अगर मैं field का name invoice number नहीं देता हूँ या फिर कोई और नेम देता हूँ, देन हमारा जो मॉडल है वो एक्सट्रैक्ट करेगा डिटेल्स को, नहीं करेगा, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड हियर आई विल सेलेक्ट फील्ड टाइप, सो आई कैन सेलेक्ट एग्जैक्ट टेक्स्ट, राइट। एंड अभी इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी बाद में मैं इसमें इंस्ट्रक्शन ऐड करूंगा। एक बार देख लेते हैं कि विदाउट इंस्ट्रक्शन जो मॉडल में सेलेक्ट किया GPT 4.0 वो डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करता है नहीं करता। अगर नहीं करता है देन मैं यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट्स ऐड करूंगा। Here I'll add one more field, vendor name, and same thing I'll choose field type exact text and another field I'll create vendor address and same field type I'll choose exact text and another field bill to and ship to and then exact text, create a new field, date. I have to extract date and so here I can choose exact text or date as well, like it's a data type. Okay, so here I'll choose date field type and then new field name, due date, and here I'll choose exact text. तो guys मैंने यहाँ पे अलग अलग फील्ड नेम चूज किए हैं, सॉरी फील्ड टाइप चूज किए, देन देखेंगे कि डेटा किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट फील्ड आई हैव टू एक्सट्रैक्ट पेमेंट टर्म्स एंड इंस्टेड ऑफ पेमेंट टर्म्स इफ आई गिव हियर XYZ एंड हियर आई एम नॉट गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन एज वेल, सो देखते हैं यहाँ पे कि वो डेटा एक्सट्रैक्ट करके लाता है नहीं लाता, राइट। एंड देन यू विल सी द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉम्प्ट। And now new field PO number, I'll create exact text and then last balance due. Okay, so here I'll choose exact text as well and I'll click on save button. So here if you will see, like I have created field group and in this field group I have created 10 fields that I have to extract, right? And in one field I have just give XYZ name. I did not give proper name, just type random XYZ and I did not give any instruction and the field type exact text. So अभी देखते हैं कि डेटा इस फील्ड में एक्सट्रैक्ट होके आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं यहाँ पे इनवॉइस आइटम इंफॉर्मेशन में भी फील्ड ऐड कर देता हूँ जो मेरे को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने हैं। यहाँ से मेरे को ओनली 4 फील्ड से एक्सट्रैक्ट करना है, आइटम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। So same I'll create item and field group, sorry field type exact text and next field name, quantity and exact text। अगर गाइस आपका बहुत अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट है जहाँ पे कोई कॉलम का नेम भी नहीं है, लेट सपोज गाइस अगर मेरा डॉक्यूमेंट इस तरीके से होता जहाँ पे आपको हेडर शो नहीं हो रहे होते एंड देन स्टिल इफ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट दीज ऑल ऑफ द डिटेल्स, बट आपको तो पता है कि फर्स्ट लाइन में आइटम्स आता है एंड ये क्वांटिटी है, आपको पता है क्वांटिटी है, बट मॉडल को तो नहीं पता ना ये क्वांटिटी है। मॉडल के एंड पर कुछ भी हो सकता है,
राइट। ये सिंपल नंबर भी हो सकता है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर। हम यहाँ पे किस तरह से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, अगर मेरे को आइटम क्वांटिटी गेट करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा, एक्सट्रैक्ट आइटम क्वांटिटी फ्रॉम द सेकंड कॉलम, राइट। तो जो मॉडल है वो सेकंड कॉलम में इस कंप्लीट टेबल के सेकंड कॉलम में जाके चेक करेगा एंड देन वहां से वो एक्सट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। बट अभी मेरे पास यहाँ पे सिंपल हेडर है, देन मैं यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा, मतलब कोई प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे नहीं दे रहा, बिकॉज मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बहुत परफेक्ट लैंग्वेज में, लाइक बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेरे को क्वांटिटी गेट करनी है। अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड या एक्स वाई ई कुछ भी लिख देता हूँ, देन I have to give this prompt, I have to give this instruction in the prompt format, right? And next field name, I have to extract rate, and then I have to extract amount as well. Okay, so here I'll select exact text and I'll create on save button. Okay, so in invoice item information field group, I have created 4 field names. So I have total 14 fields that I have to extract. Okay, field type, in the field type tab you can create a new field type as well, right? And in the exact text it's a string exact match in the document, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट में आपके मैच होगा वो वहां से एक्सट्रैक्ट होकर आ जाएगा। एंड इन इनफरेट टेक्स्ट यहाँ पे कैन बी इनफरेट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट कॉन्टेक्ट। ओके, सो आई विल गो बैक एंड नाउ I'll upload one document। अगर गाइस आप IXP के डॉक्यूमेंटेशन को गो थ्रू करोगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि हमें 10 डॉक्यूमेंट्स पे पहले चेक करना है कि हमारा मॉडल परफेक्टली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, मॉडल में जो प्रॉम्प्ट्स हमने दिए हैं वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 10 इन्वॉइसेस ऑलरेडी डमी इन्वॉइसेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं, इनफैक्ट मैंने क्रिएट किए हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पहले अपलोड करता हूँ। इट विल टेक सम टाइम टू अपलोड। ओके, सो यहाँ पे एक एरर है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे 5 इनवॉइसेस फेल हो गए, ठीक है, उनको बाद में देखते हैं, बट 5 हमारे अपलोड हो चुके हैं। हम यहाँ पे गाइस एनोटेशन स्टेटस में आके चेक कर सकते हैं कि हमने कितने फील्ड ऑलरेडी एनोटेट किए हैं, यहाँ पे कितने लेबल्ड हैं। एरर रेट हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में जो प्रॉम्प्ट हमने दिया है उसके बेस पे कितना एरर रेट यहाँ पे आता है, कि कितनी प्रोडक्शंस किया हमारा मॉडल और कितना एरर रेट उसने वहाँ पे दिया, ठीक है। अपलोड डेट में जब आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, एंड देन प्रीव्यू पे क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। बट उससे पहले मैं यहाँ पे सिंपल मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूँगा। इंटेलिजेंट प्री प्रोसेसिंग में टेबल मॉडल मिनी चूज करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे डॉक्यूमेंट में टेबल भी है जहाँ पे मुझे एक्सट्रैक्ट करना। टेबल मॉडल भी चूज कर सकते हो, ठीक है। अभी गाइस मेरे पास यहाँ पे GPT 4.0 आ रहा है, आपके पास अगर बिजनेस अकाउंट होगा देन आपके पास जेमिनी भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस हियर वी हैव सम एडवांस ऑप्शन एज वेल इन द एट्रीब्यूशन। रूल बेस्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड। रूल बेस्ड में क्या होता है, जो आपने यहाँ पे रूल्स दिए हैं वो मॉडल उसके बेस पे काम करता है, ठीक है। आप यहाँ पे होवर करके देखोगे तो यहाँ पे लिखा लो लेटेंसी ऑप्शन यूजिंग रूल्स एंड ह्यूरिस्टिक टू मैच प्रेडिक्शंस टू रेफरेंसेस, राइट। थोड़ा स्लो है बट वो जो आपने रूल दिए उसके बेस पे वर्क करता है। एंड इन द मॉडल बेस्ड यहाँ पे मॉडल अपने LLM प्रेडिक्शंस के बेस पर वो काम करता है यहाँ पे, ठीक है। एंड इन द टेम्परेचर एज वेल, नंबर बिटवीन 0.0 and 2.0, द सैम्पलिंग टेम्परेचर टू यूज हायर वैल्यू विल मेक output more random, right? So here I will not choose any value, and in the top P as well and seeds I will not choose any values, right? And here I'll click on the save button as of now. Okay, so now I'll open first document. I'll click on the document name as well, and you can click on preview button as well, right? So when I click, so this document will open, and here you can just check this document, sorry, this model is updating right now. Okay, so prediction up to date with model version 4 6 minute ago, 6 मिनट पहले ये मॉडल ऑलरेडी लाइक मॉडल का 4 वर्जन बन चुका है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही आप फील्ड बनाते हो या कुछ भी प्रॉम्प्ट चेंज करते हो तो मॉडल अपडेट होता है, और जब भी अपडेट होता है तो एक न्यू वर्जन बनता है, राइट। अभी तक मैंने जितना भी चेंजेस किया यहाँ पे उसके बेस पे मॉडल का वर्जन 4 बन चुका है। एंड देन अप्लाइंग प्रेडिक्शंस फ्रॉम मॉडल वर्जन 5, जो प्रेडिक्शंस अभी यहाँ पे मॉडल कर रहा है, ये जो प्रेडिक्शंस हो रही है यहाँ पे उसके बेस पे एक न्यू मॉडल का वर्जन बनना है जो कि है वर्जन 5, एंड वो 1 मिनट है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है, होना स्टार्ट हुआ है।
नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोर आता है, जो आपने प्रॉम्प्ट वहाँ पे दिया है, बट अभी मैंने कोई प्रॉम्प्ट दिया नहीं है, बट मैंने फील्ड नेम बहुत क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। उसके बेस पे जो प्रिडिक्शंस यहाँ पे हो रही है उसके बेस पे यहाँ पे प्रोजेक्ट स्कोर जनरेट होता है, राइट। अगर कैसे आपको लगता है कि डेटा गलत आ रहा है, देन आप मैनेज टैक्सोनॉमी में जाके अपना प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हो, फील्ड ग्रुप चेंज कर सकते हो, फील्ड नेम चेंज कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डेटा ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। अभी मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा डेटा किस फॉर्मेट में है, तो मैं सिंपल इसको टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा, ओपन टेबल व्यू। सो मैं यहाँ पे इसको टेबल फॉर्मेट में चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देखोगे मैंने 2 फील्ड ग्रुप बनाए थे यहाँ पे, तो मेरे पास 2 टेबल बन के आएंगी। सबसे पहले मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टेबल है यहाँ पे इनवॉइस जर्नल इंफॉर्मेशन, एंड उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे फील्ड 10 फील्ड्स हैं। आप यहाँ पे देखोगे तो 10 into 1, मतलब कि फर्स्ट टेबल में आपकी 10 फील्ड्स हैं यहाँ पे, इनवॉइस नंबर, वेंडर नेम, वेंडर एड्रेस, बिल टू। आप राइट साइड करके इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, और फर्स्ट रो ही आपकी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हुई है। एंड इन द सेकंड, अगर मेरे को सेकंड टेबल चेक करनी है, मैं सेकंड टेबल पे जाकर टेबल व्यू करूंगा, तो यहाँ पे मैं सेकंड टेबल देख सकता हूँ। यहाँ पे 4 फील्ड्स हैं एंड 5 रोज यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई हैं। आप देखोगे तो आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, 4 फील्ड्स हैं एंड 5 आपकी रोज यहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। अभी गाइस यहाँ पे मैंने लेबलिंग कुछ भी नहीं किया, एंड देन स्टिल डेटा परफेक्ट यहाँ पे गेट होके आ रहा है। ठीक है, आप देखोगे तो ओके। सो मैं जाऊंगा फर्स्ट टेबल व्यू पे एंड देन यहाँ से मैच कर लेते हैं डेटा। अभी आप यहाँ पे देखोगे रेफरेंस जो भी ले रहा है, जो मेरा मॉडल है GPT 4.0, वो रेफरेंस ले रहा है यहाँ से 00 1 to 5, बट वो हैज को भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। बट मेरे को हैज एक्सट्रैक्ट नहीं करना इनवॉइस नंबर में। देन मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को अपना प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। अभी तक मैंने प्रॉम्प्ट नहीं दिया, बट अब मेरे को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे हैज नहीं चाहिए, और मॉडल को कैसे पता चलेगा हैज नहीं चाहिए मेरे को, वो चलेगा प्रॉम्प्ट के थ्रू। ठीक है, एंड देन वेंडर नेम, वेंडर नेम परफेक्ट गेट होके आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके। सो आप अगर पेज में नीचे हो कहीं पे, आपके डॉक्यूमेंट में मल्टीपल पेजेस हैं, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिक वहीं पे लेके आपको आ जाता है। ठीक है, तो वेंडर नेम परफेक्ट गेट हो रहा है। अगर ये परफेक्ट नहीं है, देन आप यहाँ पे सेलेक्ट करो। मेरे को मान लो इतना सेलेक्ट करना है। देन हेयर वी हैव वन प्लस आइकन, अपडेट वैल्यू एंड रेफरेंस। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे मेरे पास आया रेफरेंस एंड प्रिडिक्शंस। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करता हूँ। रेफरेंस एंड प्रिडिक्शंस, इसका मतलब है कि प्रिडिक्शंस जो मॉडल ने हमारे प्रिडिक्शंस किया, वो प्रिडिक्शंस किया था फर्स्ट लाइन को ओनली। ठीक है, जो भी नेम है यहाँ पे, वो फर्स्ट लाइन को इसने प्रिडिक्ट किया था। पर यहाँ पे मैंने जो रेफरेंस उसको दिया है, मैंने रेफरेंस बोला है उसको, उसके नीचे की लाइन भी आप एक्सट्रैक्ट करो। यहाँ पे आप देखोगे इसको होवर करके, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे अभी जो वैल्यू आई उसमें एड्रेस भी आ गया, सेक्टर 62 नोएडा। ठीक है, तो मैंने उसको रेफरेंस दिया कि आप ये तो लेके आओ, बट ये भी गेट करके लेके आओ। इसके बेस पे गैस आप यहाँ पे देखोगे तो एक वार्निंग मैसेज मेरे को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, बट स्टिल मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, ये वैल्यू मेरी कंफर्म है। मेरे को लास्ट वाली लाइन भी एक्सट्रैक्ट करनी है जहाँ पे एड्रेस भी है, बट ये गलत है। ठीक है, बट प्रिडिक्ट तो कर रहा है कि फर्स्ट लाइन है, वेंडर नेम के अकॉर्डिंग फर्स्ट लाइन ही एक्सट्रैक्ट होनी चाहिए, मॉडल ने प्रिडिक्ट किया है। बट मैंने उसको एज ए रेफरेंस दिया कि आप लास्ट की लाइन भी एक्सट्रैक्ट करो। इसके बेस पे क्या होगा, मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे पहले कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, वेंडर एड्रेस भी मेरा परफेक्ट गेट होके आया है। एंड देन बिल टू, आप यहाँ पे चेक करोगे तो रेफरेंस ले रहा है पेज 1 से, फ्रॉम पेज 1। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो बिल टू परफेक्ट गेट होके आ रहा है, एंड देन शिप टू भी मेरा परफेक्ट गेट होके आ रहा है। एंड देन डेट, आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने इसका जो टाइप था वो मैंने चूज किया था डेट फॉर्मेट में, तो इसने इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। पर रेफरेंस ले रहा है दिसंबर 2 दिसंबर 2025। ठीक है, यहाँ से, पर इसने डेट को चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि मैंने इसका फॉर्मेट चेंज किया था डेट। अगर मैं एग्जैक्ट टेक्स्ट इसको रखता तो सेम जो रेफरेंस दे रहा वही सेम वैल्यू यहाँ पे गेट होके आती। ठीक है, एंड इन द ड्यू डेट एज वेल, मैंने ड्यू डेट में एग्जैक्ट टेक्स्ट दिया था, तो यहाँ पे एग्जैक्ट जो भी लिखा हो वो सेम लेके आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड इन द XYZ, सो आप यहाँ पे देखो XYZ कोई वैल्यू होती नहीं है, मतलब ऐसा कोई फील्ड होता नहीं है इनवॉइस में, तो इसने इसको मिसिंग दिखाया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे को XYZ में वैल्यू लेके आनी है, मेरे को पेमेंट टर्म का नेम जो है, कॉलम का नेम XYZ लिखा है,
और मेरे को इसमें पेमेंट टर्म की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को सिंपल प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको सिंपल यहाँ पे एज मिसिंग कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन पीओ नंबर परफेक्ट गेट होके आ रहा है, बैलेंस ड्यू परफेक्ट गेट होके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कन्फर्म ऑल किया। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल सेकंड टेबल पे जाके एक बार चेक कर लेता हूँ, एंड देन फिर हम इसका स्कोर चेक करेंगे, ठीक है। आइटम 1 में गाइस आप देखोगे परफेक्ट लाइन आइटम, फर्स्ट लाइन परफेक्ट गेट होके आ रही है, रेट भी मेरा परफेक्ट एंड अमाउंट भी परफेक्ट गेट होके यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सेम डिटेल्स परफेक्ट गेट होके आ रही हैं सारे लाइन आइटम्स, ठीक है। मैं सभी को कंफर्म ऑल कर सकता हूँ यहाँ से क्लिक करके, तो सारे फील्ड सारे लाइन आइटम्स कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन सबमिट एनोटेशन, इसका मतलब कि जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो इसके बेस पे मॉडल का स्कोर यहाँ पे जनरेट होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखो तो पहले 30 ऑफ 30 कंफर्म्ड आ रहा था, अब यहाँ पे 10 ऑफ 30 कंफर्म आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे सबमिट और रीसबमिट एनोटेशन कर सकता हूँ, इसको कंफर्म ऑल करके यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, दिस एक्शन विल सबमिट डॉक्यूमेंट एनोटेशन टू द मॉडल, हाउ वुड यू लाइक टू प्रोसीड विद द अनकन्फर्म्ड फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँ कन्फर्म प्रिडिक्टिव फील्ड वैल्यू एज दिस, ठीक है। तो मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करूंगा एंड देन आई विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो यहाँ पे आप देखो 30 सबमिट हो चुके हैं एंड मेरा मॉडल भी गाइस अपडेट हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। मैं बैक जाऊंगा, बैक जाके आप यहाँ पे देखोगे तो प्रोजेक्ट का स्कोर जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 92% स्कोर आ रहा है। 92% क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3% एरर रेट शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 3% एरर रेट है, इस डॉक्यूमेंट में 3% का एरर रेट शो हुआ है, इसकी वजह से 92% इसका स्कोर आ रहा है। So now I'll change my taxonomy here, and in the invoice journal information I'll edit XYZ. So here I'll give instruction, make sure you have to extract the payment terms, and I'll click on save. तो जैसे आपने सेव पे क्लिक किया देन मॉडल अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इसका एक न्यू वर्जन बनेगा, ठीक है। अभी 7 वर्जन है, यहाँ पे न्यू वर्जन को ऑटोमेटिक वो अपडेट कर देता है, ठीक है। एंड इन द इनवॉइस नंबर आई डोंट वांट टू एक्सट्रैक्ट हैज वैल्यू, लाइक जो हैज एक स्पेशल कैरेक्टर आ रहा था, ठीक है। आई डोंट वांट डू दैट, सो डू नॉट कंसिडर। तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, डू नॉट कंसिडर हैज फ्रॉम इनवॉइस नंबर, एक्सट्रैक्ट इनवॉइस नंबर विदाउट हैज, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से 2 लाइंस यहाँ पे लिखी हैं, डू नॉट कंसीडर हैज फ्रॉम इनवॉइस नंबर एंड कोमा लगा लिखा एक्सट्रैक्ट इनवॉइस नंबर विदाउट हैज, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना चेंज आता है वहां पे, एंड आई क्लिक ऑन द सेव बटन एंड फील्ड टाइप आप देखो एग्जैक्ट टेक्स्ट ही है वहां पे। एंड वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे अगर आप एडिट पे क्लिक करोगे तो रिसेंट इंस्ट्रक्शन हिस्ट्री अभी प्रीव्यू में है, बट यहाँ पे क्या है कि आपकी जो हिस्ट्री है वो यहाँ पे स्टोर करके रखता है, ठीक है। जो भी आपने प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस लिखा था, आप यहाँ पे राइट करोगे लेफ्ट तो यहाँ पे प्रीवियस दिखा देगा, आपने प्रीवियस जो प्रॉम्प्ट दिया था, सॉरी प्रीवियस में आपने कुछ नहीं दिया था, यहाँ पे तो एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। अभी जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है वो यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि आपने प्रीवियस क्या लिखा था, आपका डॉक्यूमेंट कुछ नया डॉक्यूमेंट आया नेक्स्ट टाइम, उसमें डेटा एक्सेप्ट नहीं हुआ, देन फिर से आपने प्रॉम्प्ट चेंज किया, तो आप देख सकते हो कि प्रीवियस क्या प्रॉम्प्ट था और अभी क्या प्रॉम्प्ट है, और आप नेक्स्ट टाइम क्या प्रॉम्प्ट चेंज करोगे सारी हिस्ट्री आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको सिंपल कैंसिल करूंगा। तो मैंने यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं इनवॉइस नंबर के लिए एंड XYZ जो कि पेमेंट टर्म्स है, मेक श्योर यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द पेमेंट टर्म्स, राइट। आई विल गो बैक एंड देन आप यहाँ पे देखो द एरर रेट 10% हो चुका है, ठीक है। एक बार इसको अपडेट होने देते हैं। अगर गाइस आप AI सेंटर के थ्रू अपने मॉडल को ट्रेन करते हो तो वहां पे आपको लेबलिंग करनी पड़ती है, IXP में आपको प्रॉम्प्ट लिखने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि गाइस अभी तो इस इनवॉइस में बहुत स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डेटा लिखा हुआ है, बट डॉक्यूमेंट बहुत अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में आते हैं जो कि IXP में यूज होते हैं, उसमें आपको प्रॉम्प्ट बहुत बार चेंज करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि लेबलिंग से आप बच जाओगे, बट यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट के साथ आपको इधर उधर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब उसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है।
इस बार गाइस मैं फर्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, जिसमें 10% का एरर रेट अब शो कर रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट स्कोर आप यहाँ पे देखोगे तो गुड दिखा रहा है, बट ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको चेक करता हूँ। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्स वाई जेड कॉलम को देखते हैं, वहां से वैल्यू गेट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड में आप यहाँ पे देखोगे तो अभी वो मिसिंग दिखा रहा है, बट प्रिडिक्शन जो मेरे मॉडल ने किया है मेरे प्रॉम्प्ट के बेस पे, उसमें दिखा है नेट 30 डेज, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है। ठीक है, तो प्रिडिक्शन वो ठीक कर रहा है, और अभी रेफरेंस उसको मैंने क्या रखा, मार्क एज मिसिंग। तो सिंपल मैं इसको प्रिडिक्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो उसने प्रिडिक्शन किया था वही अब रेफरेंस लेके वैल्यू यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी अभी मुझे पता है वैल्यू ठीक आ रही है, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट क्लियरली मेंशन कर दिया कि एक्स वाई जेड में पेमेंट टर्न की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो वैल्यू परफेक्ट गेट कर रहा है। सिंपल मैं इसको कंफर्म कर दूंगा यहाँ पे। जैसे ही मैं कंफर्म करूंगा उसके बेस पे मेरा प्रोजेक्ट स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे इस पे एरर रेट नहीं है कोई भी। ठीक है, अभी गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो वेंडर एड्रेस में जो वैल्यू गेट होके आ रही है वो सिंपल आ रही है, उत्तर प्रदेश, लाइक A21 सेक्टर 62 नोएडा उत्तर प्रदेश, और आपका पिन कोड। बट यहाँ पे आप देखोगे तो प्रिडिक्शन जो मेरा मॉडल कर रहा है वो प्रिडिक्शन कर रहा है कि ईमेल को भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है और फोन नंबर को भी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। अगर आपको प्रिडिक्शंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब जो प्रिडिक्शन कर रहा है वही एक्सट्रैक्ट करना है, आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश पे भी क्लिक कर सकते हो, बट मेरे को नहीं करना वो डेटा गेट। सिंपल मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, एंड देन वेंडर नेम परफेक्ट गेट होके आ रहा है यहाँ पे, जो मेरे को चाहिए था। बट आप देखोगे इनवॉइस नंबर अभी भी सेम ला रहा है, जो कि हैज के थ्रू लेकर आ रहा है। ठीक है, तो जो प्रॉम्प्ट आपने दिया वो वर्क नहीं कर रहा है, देन आपको फिर से प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, सिंपल मैं अभी के लिए इसको रीसबमिट कर देता हूँ, एंड देन मैं फिर से बैक जाऊंगा यहाँ पे। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एरर रेट 3% हो चुका है। तो अपने एक्स वाई जेड में पहले एरर आ रही थी, उसको रिड्यूस कर दिया प्रॉम्प्ट को चेंज करके। सेम आप फिर से प्रॉम्प्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हो इनवॉइस के लिए। ठीक है, बट अभी मैं सेकंड डॉक्यूमेंट पे गाइस फिर से ट्राई करूंगा। सेकंड डॉक्यूमेंट में ओपन करूंगा यहाँ पे। सेकंड डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे लोगो चेंज है, फॉर्मेट सेम ही है, लोगो चेंज है। एंड मैं यहाँ पे फिर से टेबल फॉर्मेट में फर्स्ट वाली ग्रुप को ओपन करूंगा, एंड देन इनवॉइस नंबर परफेक्ट आ रहा है, बट हैज वैल्यू अभी भी लेके आ रहा है। तो सिंपल अभी के लिए मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ, बट बाद में मैं इसको चेंज करूंगा। ठीक है, अभी कैसे यहाँ पे आप देखो वेंडर नेम में वो यूआई पाथ विद अंकित लेके आया, जबकि ये नहीं लेके आना था उसको, क्योंकि इसने ये वैल्यू लोगो से गेट कर ली। ये लोगो है यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखोगे जैसे बाकी इनवॉइस में यहाँ पे मैंने कुछ लोगो लगाए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक लोगो है, बट ये यहाँ से वैल्यू गेट करके लेके आ रहा है, तो मेरे को लोगो से वैल्यू नहीं चाहिए। यहाँ पे वेंडर का नेम सिंपल इधर लिखा हुआ ऑटोमेशन हब कंसल्टेंसी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके प्रॉम्प्ट चेंज करूंगा। जो भी वेंडर का एड्रेस है, सॉरी वेंडर का नेम, जो भी वेंडर का नेम है वो लोगो से गेट नहीं करना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए अपना प्रॉम्प्ट चेंज करूंगा, वेंडर नेम लोगो से गेट ना करे। ठीक है, एंड देन वेंडर एड्रेस आप यहाँ पे देखो तो ऑटोमेशन हब कंसल्टेंसी कंप्लीट लेके आ रहा है वो। ठीक है, जो कि मेरे को ये नहीं चाहिए। तो सिंपल मैं यहाँ पे इसको कंसीडर करूंगा, एंड देन मैं यहाँ पे इसको ऐड करूंगा। ये आपको ऐड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके थ्रू ही आप पता लगा सकते हो कि आपका एरर रेट कितना आ रहा है, प्रोजेक्ट स्कोर कितना आ रहा है। अगर मैं इसको गाइस यहाँ पे कंफर्म कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मेरा प्रॉम्प्ट और जो प्रोडक्शन इसने किया वो परफेक्ट है। ठीक है, वो परफेक्ट वर्क कर रहा है, तो कोई एरर नहीं आएगा। बट जबकि मेरे को इसको एरर शो करना है कि वेंडर नेम में एरर आ रहा है, क्योंकि वेंडर नेम तो ये है, वेंडर नेम में इसको गेट करना है। यूआई पाथ विद अंकित, जो भी लोगो में आपका नेम लिखा उसको गेट नहीं करना है। ठीक है, तो सिंपल अभी मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, तो यहाँ पे इसने वार्निंग दिखाया। तो वार्निंग में आप देखो कंटेन्स एनोटेटेड वैल्यू दैट डू नॉट मैच मॉडल प्रिडिक्शंस। ठीक है, जो आपने एनोटेशंस किया है और जो मॉडल ने प्रिडिक्शंस किया वो मैच नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये है आपको अपना प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा उसको मैच कराने के लिए, इसके प्रोडक्शंस को मैच कराने के लिए। ठीक है, सिंपल बिल्ड टू सही गेट हो रहा है, तो मैं इसको परफेक्ट मैच करूंगा यहाँ पे, एंड देन शिफ्ट टू एंड डेट एज वेल एंड ड्यू डेट, एंड एक्स वाई जेड में आप देखो तो नेट 15 पेमेंट टर्म परफेक्ट गेट करके लेके आ रहा है वो। ठीक है, एंड पीओ नंबर परफेक्ट गेट हो रहा है, बैलेंस ड्यू भी मेरा परफेक्ट गेट होके आ रहा है। ठीक है, मैंने सभी को कंफर्म ऑल कर दिया, बट यहाँ पे वेंडर नेम और वेंडर एड्रेस को मैंने प्रोडक्शंस हटा के, ठीक है, यहाँ पे तब इसको कंफर्म किया है। एंड देन मैं यहाँ पे सेम सेकंड टेबल, तो आई थिंक कंप्लीट लेके आएगा वो। ठीक है, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है जो टेबल फॉर्मेट है, मतलब जो जहाँ से मेरे को गेट करने आइटम्स एंड क्वांटिटी, तो मैं इसको कंफर्म ऑल करूँगा।
एंड देन मैं यहाँ पे इसको सबमिट एनोटेशन करूंगा। ठीक है, मैंने इसको सबमिट कर दिया। यहाँ पे प्रेडिक्शंस आर आउटडेटेड है, तो आप इसको रीरन प्रेडिक्शंस भी कर सकते हो इधर। ठीक है, बट आपकी प्रीवियस सबमिशन सबमिट हो चुकी है, जो आपने पहले सबमिट किया था। मैं सिंपल बैक जाऊंगा एंड देन यहाँ पे आप देखो तो एरर रेट 11% आ रहा है, जिसके बेस पे आपका प्रोजेक्ट स्कोर लो हो चुका है। इसी तरीके से गाइस आपको मिनिमम 10 डॉक्यूमेंट्स पे अपना प्रॉम्प्ट चेक करना है कि प्रॉम्प्ट परफेक्टली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ओके। सो जैसे कि वेंडर नेम गेट होके आ रहा था लोगो से, देन मैं यहाँ पे सिंपल प्रॉम्प्ट दे दूंगा, डू नॉट एक्सट्रैक्ट वेंडर नेम फ्रॉम लोगो। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और दे सकता हूँ। पहले तो मैं इतने ही प्रॉम्प्ट को चेक करूंगा, अगर परफेक्टली वर्क कर रहा है देन वेल एंड गुड, अगर परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा है देन आई विल राइट वन मोर लाइन हियर, यू हैव टू चेक वेंडर नेम बिलो द लोगो। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आपको वेंडर नेम कहाँ मिलेगा, लोगों के जस्ट नीचे मिलेगा। ठीक है, वेंडर नेम जस्ट बिलो द लोगो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे के उसको ट्राई कर सकते हो। सिंपल, मैं यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करूंगा एंड गाइस यहाँ पे आप देखो इनवॉइस नंबर में भी वैल्यू गेट नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट टेक्स्ट किया हुआ है। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट वहाँ पे एग्जैक्ट लिखा हुआ वो उसी को गेट करके लेकर आएगा, भले से आप यहाँ पे कुछ भी प्रॉम्प्ट दे दो उसको। सिंपल, मैं यहाँ पे एग्जैक्ट टेक्स्ट की जगह सिंपल इनफिनिट टेक्स्ट यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा एंड आई विल क्लिक ऑन कन्फर्म। देन आप देखना वो हैज लेके आता है नहीं लेके आता, फिर हम चेक करते हैं। ठीक है, अभी अपडेट होने देते हैं, ये अपडेटिंग पे है। एंड आप यहाँ पे देखोगे गाइस इसका मॉडल वर्जन 12 बन चुका है। जितनी बार भी आप चेंज करोगे उतनी बार उसका मॉडल वर्जन चेंज होता रहेगा। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे आप विल टू शिप टू जो भी फील्ड का नेम है बिल्कुल क्लियरली अगर ना आप नेम दे रहे हो तो आपको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल XYZ लिखा, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट बहुत ही अनस्ट्रक्चर है, वहाँ पे नहीं पता चल रहा कि वैल्यू कहाँ से गेट होनी, देन आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट के बेस में दे सकते हो, सिंपल अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो। जैसे आप किसी को सामने वाले पर्सन को आप बहुत वेरी इजी लैंग्वेज में समझाते हो, सेम लैंग्वेज आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कि मॉडल उसको समझ पाए। अगर नहीं आपको लिखना आ रहा है देन आप ChatGPT या जेमिनी से भी लिखवा सकते हो प्रॉम्प्ट। ठीक है, अभी आइटम क्वांटिटी और रेट अमाउंट बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया है, देन आई डो नॉट नीड टू गिव एनी इंस्ट्रक्शंस हियर, राइट। एंड आई विल गो बैक and guys here you can change attribution as well। right now मैंने यहाँ पे मॉडल बेस किया हुआ है, देन आई विल गिव रूल बेस, जो मैंने इसको रूल दिए हैं उसके बेस पे डेटा एक्सट्रैक्ट करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज करके उसको ट्राई कर सकते हो कि आपका मॉडल वर्क परफेक्टली कर रहा है नहीं कर रहा है, एरर रेट इंक्रीज तो नहीं हो रहा उसका। ठीक है, एरर रेट आपका लो ही रहना चाहिए। सो दिस मॉडल इज अप टू डेट राइट नाउ। ओके, सो मैं यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में इसको ओपन करूंगा एंड देन गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो अभी हैज नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इनवॉइस नंबर गेट होके आ रहा है बट हैज वैल्यू गेट होके नहीं आ रही है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी वैल्यू मेरी परफेक्ट गेट होके आ रही है। देन मैं यहाँ पे सिंपल इसको क्लिक करूंगा एंड आप यहाँ पे इसको रीप्रेडिक्ट भी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वैल्यू गेट होके नहीं आई है ठीक से। एंड देन वेंडर नेम गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो अभी वो ठीक गेट करके लेके आ रहा है वेंडर नेम। एंड वेंडर एड्रेस में आप यहाँ पे चेक करोगे तो वेंडर एड्रेस भी वो ठीक गेट करके लेके आ रहा है। एंड बिल टू एंड शिप टू डेट ड्यू डेट एंड बाकी सारी चीज़ें भी परफेक्ट गेट होके आ रही हैं। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे सेकंड टेबल भी चेक कर लेता हूँ एक बार, सेकंड टेबल भी ठीक ही गेट होके आ रही होगी यहाँ पे। बट मेरे को इनवॉइस चेक करनी थी, इनवॉइस में हैज वैल्यू अभी नहीं आ रही है, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको रीसबमिट कर दूंगा। ठीक है, एंड मैं बैक यहाँ पे जाऊंगा। ओके, अभी गाइस यहाँ पे देखो 5% का एरर रेट इंक्रीज हो चुका है। आपको फिर से अपना प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा, जहाँ पे वो एड्रेस में प्रॉब्लम कर रहा है अभी भी, तो आपको एड्रेस के लिए फिर से प्रॉम्प्ट चेंज करना है एंड देन फिर से आपको वैल्यू गेट करके देखनी है यहाँ पे। ठीक है, बट ठीक है 5% रेट चल जाता है, इतना परसेंट रेट तो लाइक 10% तक एरर रेट आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर उससे ज़्यादा एरर रेट आ रहा है देन आपको अपने प्रॉम्प्ट में चेंज करना पड़ेगा। अभी तो बहुत ही स्ट्रक्चर फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट है, तो आप इसमें प्रॉम्प्ट चेंज कर सकते हो।
एंड सेकंड डॉक्यूमेंट भी चेक करके देख लेते हैं। इनवॉइस नंबर में हैज़ नहीं आना चाहिए, तो आप यहाँ पे देखोगे इनवॉइस में वो बता रहा है कि रेफरेंस तो हैज़ है उसमें, बट आपके इनवॉइस नंबर में हैज़ नहीं आएगा, ठीक है। उससे प्रॉब्लम कोई नहीं है कि आपके रेफरेंस में यहाँ पे एरर शो कर रहा है। रेफरेंस में तो वो दिखाएगा कि रेफरेंस तो वैल्यू यहाँ से गेट करने के लिए ले ही रहा है वो, बट आपको जो एक्चुअल वैल्यू दे रहा है वो हैज़ के साथ नहीं दे रहा है, विदाउट हैज़ दे रहा है, ठीक है। जो आपने उसको प्रिडिक्शंस दिया था, सॉरी जो आपने उसको वहाँ पे प्रॉम्प्ट पे दिया था। तो मैं यहाँ पे कन्फर्म ऑल करूंगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आप देखो वेंडर नेम, जो वेंडर नेम में मैंने इसको बताया था कि डेटा लोगो से गेट नहीं करना है, तो इसने इस बार लोगो से गेट नहीं किया है। इस बार वो ऑटोमेशन हब कंसल्टेंसी परफेक्ट लेके आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको बताया था कि आपको लोगो से गेट नहीं करना, डू नॉट एक्सट्रैक्ट वेंडर नेम फ्रॉम लोगो, जस्ट एक्सट्रैक्ट बिलो द लोगो, ठीक है। तो मैंने इसको सिंपल बताया था कि इसके नीचे से एक्सट्रैक्ट करना, तो उसने वहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, परफेक्ट एक्सट्रैक्ट किया है। इसी तरीके से गाइस आपको यहाँ पे बाकी के डॉक्यूमेंट्स पे भी चेक करना है, ठीक है, कि कितना एरर रेट वहाँ पे आ रहा है, परफेक्टली वैल्यू गेट हो रही है नहीं हो रही है। एंड गाइस यहाँ पे आपका मॉडल अपडेट हो जाएगा जब मॉडल में आपको लगता है कि परफेक्ट वर्क कर रहा है, सारे डॉक्यूमेंट से डेटा परफेक्टली गेट होके आ रहा है, देन यू कैन पब्लिश योर मॉडल टू योर orchestrator, देन यू कैन यूज दिस मॉडल इन द UiPath स्टूडियो एज वेल। अभी आप यहाँ पे देखोगे 6% एरर रेट है, 9% था पहले, अब यहाँ पे 3% है। इस तरीके से आप बाकी के डॉक्यूमेंट्स में भी चेक कर सकते हो। तो अब गाइस यहाँ पे एनोटेशंस जो आप कर रहे हो उसका मतलब ये नहीं कि आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है। एनोटेशन से आप ये पता लगा सकते हो कि आपका जो डेटा है वो कहाँ से आ रहा है और कितना गलत डेटा आ रहा है, उसके बेस पे आपका एरर रेट यहाँ पे शो होगा। आप प्रिडिक्शंस उसने कुछ और किया था और डेटा कुछ और आया, तो आप उसको एनोटेट करोगे कि डेटा यहाँ से लेके आना है। उसके बेस पे IXP को लगेगा कि ये एरर है, एरर के बेस पे वो आपके स्कोर को डाउन करेगा। स्कोर को डाउन करेगा मतलब आपको अपनी प्रॉम्प्ट चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल ट्रेन नहीं होता है। अगर डेटा गलत आ रहा है इसका मतलब है एरर रेट कम है, एरर रेट कम है इसका मतलब है कि आपको अपना प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको अपने प्रॉम्प्ट में चेंजेस करने होंगे। अभी गाइस यहाँ पे देखोगे इसमें परफेक्टली डेटा आ रहा है, सब कुछ डेटा परफेक्ट गेट होकर आ रहा है जैसा मेरे को चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे कंफर्म ऑल करूँगा एंड सिंपल मैं सेकंड वाली टेबल पे जाके भी एक बार चेक कर सकता हूँ। यहाँ पे सेकंड टेबल से भी मेरा डेटा परफेक्ट यहाँ पे गेट होके आ रहा है, ठीक है। कंफर्म ऑल करके अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखना इसमें एरर रेट नहीं आएगा, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा, थोड़ी देर में रिफ्रेश हो जाएगा, तो यहाँ पे एरर रेट इसका 0 आ जाएगा क्योंकि सारा डेटा परफेक्टली गेट होके आ रहा था। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग IXP में वर्क कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स मैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो गाइस आप यहाँ पे देखो इसमें 0% का रेट आ रहा है, मतलब कि जो मॉडल्स को मैंने प्रोडक्शंस दिए थे, सॉरी प्रॉम्प्ट दिया था, परफेक्टली वर्क कर रहा है। इसी तरीके से मैं 10 डॉक्यूमेंट्स पे और चेक कर सकता हूँ, मिनिमम 10 डॉक्यूमेंट्स पे चेक करूंगा एंड देन मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। देन इसको अपने अपने स्टूडियो में यूज कर सकता हूँ। जो ड्यू की टेम्पलेट होती है उसमें कैसे यूज करते हैं, बाकी मेजर टैब का क्या मीन्स होता है, पब्लिश कैसे करते हैं, बाकी सारी चीज़ें गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। अगर गाइस आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द LinkedIn। And guys, if you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel, and you can share this video in your group as well. Thank you so much guys for watching this video. Bye.